योर चैप्टर 15, इसमें ये सब पढ़ोगे आप। जैसे आपने सारा पढ़ लिया है, यू ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट, बट नाउ यू गोना ओके। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है इस PDF फिल्टर पे। Defines how the data used by Siebel application is stored in a standard third-party relational database. He says I am not worried about Oracle and SQL सर्वर सब जगह जहाँ पे भी वैसे भी स्टोर होता है, सब जगह एक ही लॉजिकली तो एक ही बात है ना। तुमने पहले भी इस बात को बोला था ना। स्पेसिफाइज द टेबल्स एंड इंडेक्सेस, सारे टेबल्स इंडेक्सेस सब कॉलम वही करेंगे। इज डिजाइन टू सपोर्ट द डेटा रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस Siebel business applications, right? Defines the business field, business component, these are business logic, column table, these are all data, ठीक है ना। The Siebel data model has been extended for some industry applications to incorporate additional tables and columns specific to the industry application, ठीक है। तो Siebel आउट ऑफ द बॉक्स एज यू नो काफ़ी रेडी होकर आता है Siebel फार्मा के लिए, स्टिल और भी ज़्यादा यही होती है चीज़, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Understanding the data model. In order to develop and install a Siebel, you need to understand what data is stored in the Siebel database, the pieces that make up the Siebel database, the rules and policies for using those pieces, the consequences of those rules and policies. नंबर ये आपको पता होना चाहिए कि बुई में जो दिख रहा है ऐसे नहीं स्टोर हो जाएगा, मैनी टू मैनी के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर आपने एक ऐसा इफ़ यू हैव यूजिंग अ टेबल, यू नो यू अंडरस्टैंड फॉरेन की एंड प्राइमरी की, you know you need to understand that if you are storing something here like in account, then like for example here, you know, you are having account and then you have address and track which are coming from the account table. You don't need to store everything in the opportunity table, you will only store account row ID as a foreign key in the opportunity table. You should understand these things, which you do actually, so nothing to worry. The pieces to understand: table, columns, indexes, user keys, primary and foreign keys. Indexes and user keys are new to you, okay? So you write it here, ये करने हैं. So write indexes and user keys somewhere and then we'll do it later. Siebel data is stored in normalized tables in a relational database. You understand what is normalized? See, broker Siebel हमने कई बार एग्जांपल किया, दैट एक क्लास है, एक रोल नंबर है। स्कोर में अगर आप देखो क्लास स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम, फादर का नाम, ये वो सब लिखा है। फिर एक स्कोर है, टेबल है, उसमें लिखते हैं उसका रोल नंबर और उसका स्कोर लिख देते हैं। या उसके सारे डिटेल्स देखें, नाम, फर्स्ट नेम, राइट, सारे भी लिखना चाहते हैं, राइट, तो फिर उसका रोल नंबर और स्कोर लिख देते हैं। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दो, फिर चल जाएगा काम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम गौरव सिंगला, स्कोर 20, क्योंकि उसके ऐसे नाम के बड़े लोग हो सकते हैं, तो वी शुड राइट एवरीथिंग देन फॉर दैट गाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वी जस्ट इन दिस टेबल, इन द सेकंड स्कोर टेबल, वी जस्ट राइट द रोल नंबर व्हिच इज यूनिक, right, so that the data doesn't have to repeat again and again. One option is to write all the data again here. Second option is, even better example is opportunity and contract, sorry, account and opportunity. One option is we store account data once, and in the so there are multiple opportunities which are having relationship with one account, same account. So we don't want that account data to repeat again and again in the opportunity table, right? So we just write foreign key. So row ID 111, right? You don't have to now store the entire account detail again. एक और opportunity है, that same opportunity, there is another opportunity which has the same relationship with the same account. We just have to store 111. We don't have to store the entire thing again. So we are saving a lot of space. This is called as normalization. We have basically normalized the tables. है ना, data model. So data model आपने उसको break कर दिया दो tables में. So ऐसे करके, अब normalization is not just this small a philosophy, it's a very big philosophy. There are 4 or 5 types of normalizations. हमारे लिए एक ही बहुत है. Normalization की 4 होती हैं, पढ़ोगे तो पता चलेगा, 4 होती हैं, हाँ, बट यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. Each table has multiple columns storing single value data. राइट, यू नो दैट एक फील्ड में, एक कॉलम में एक ही वैल्यू जाएगी, मल्टीपल वैल्यूज नहीं जा सकती. डेटा स्कीम इज ऑर्गेनाइज टू एलिमिनेट रिपीटेड स्टोरेज ऑफ डेटा. यही मेन बात है. सी, यही मैंने बोला, रिपीटेड स्टोरेज को एलिमिनेट किया हुआ है. आपको पता है, अगर मान लो कोई कंपनी लगा लो, ठीक है,
लेट्स से Baxter, अगर उनके डेटाबेस का साइज लेट्स से 20 GB है, ये 200 GB है, अगर ये नॉर्मलाइजेशन ना करें तो कितना खो सकता है आपके साथ? 200 GB की जगह 400 GB हो जाएगा, 600 GB हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा 200 TB हो जाएगा. लाइक एक्सपोनेंशियली इट माइट इंक्रीज 10,000 टाइम्स, बिकॉज हर चीज़ रिपीट हो रही है ना. हाँ हाँ अकाउंट का कहाँ कहाँ रेफरेंस हो रहा है, सब जगह रिपीट होगा वो. हाँ हाँ There's so many tables which reference account table, right? Everywhere it will be repeated. Organization data will be repeated everywhere. It will become exponentially high. Making sense? हाँ Is a column that uniquely identifies each row in a table. In that table, it will uniquely identify. अगर दो अलग अलग टेबल उनमें भी रो आई डी यूनिक रहेंगे, अक्रॉस टेबल भी यूनिक होता है रो आई डी. यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, आ सकते हैं वहाँ पे आ सकता है. उसी टेबल में यूनिक होते हैं. ठीक है. सिविल की अपनी चक्कर है कि कई बार वो सिविल कोशिश ये करता है हर जगह ही रो आई डी यूनिक है, बट जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है सिविल के लिए करना. एक टेबल में करना बहुत इम्पॉर्टेंट और वो लाइक मस्ट है. मस्ट रो आई डी सर्व्स एज द प्राइमरी की फॉर सिविल डेटाबेस टेबल्स. वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ये एस्पोरेंट में रो आई डी है. ठीक है. आपने नोट किया होगा ये सारा जो है सिविल लाइफ साइंस, ये सारे जो से हैं इनको पीछे एक रो आई डी असाइंड है हर रो को. यू नो दैट. And if you want to see the row ID assigned to this one, it's right here. ये इसका row ID है. ठीक है ना. Is a column in every table contains a Siebel application generated identifier. This is very interesting. It is Siebel application generated. Siebel कहता है कि मैं यूज़र को ये नहीं जनरेट करने दूंगा, बिकॉज वो अगर यूनिक ना रखे, कुछ और कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे. So it is always generated by a Siebel application. In fact, it's not only a Siebel concept. Primary keys are always generated by the application itself. SCPP भी होगा. डेटाबेस. ठीक है. मतलब ये कोई अलाउ ही नहीं करेगा. ठीक है ना. That is unique across all tables and mobile users. वैसे इसने बोला that is unique across all tables. वैसे अभी पता नहीं सच है कि नहीं है, मुझे पता है ऐसे जरूरी नहीं है. पूरे डेटाबेस में यूनिक होती है. Is the means by which Siebel application maintains referential integrity. Database referential integrity constraints not used. ये Siebel referential integrity थोड़ा अंदाजा क्या होती है, ये तो मैं ऐसे ही देता हूँ 2 मिनट लगेंगे. ठीक है. अब एक टेबल है अपॉर्चुनिटी टेबल, उसमें फॉरेन की में उसके अंदर अकाउंट का रो आई डी डाला हुआ है. अगर यहाँ पे एक लिखा है रो आई डी 111, वहाँ पे गए और वहाँ पे 2 111 है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना. अपॉर्चुनिटी टेबल किसको रेफर कर रहा है इन दोनों में से, अकाउंट में से. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. सेकंड थिंग इज अगर वो 111 डिलीट हो जाए वहाँ से, यहाँ पे 111 लिखा रह गया, तो ये किसको रेफर कर रहा है? इंजन जाएगा वहाँ जाके देखिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो दिस इज अनदर ब्रेकेज ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ठीक है. मेकिंग सेंस. तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं इसको, कि रेफरेंशियल हर चीज़ ठीक चीज़ को रेफरेंस कर रही है. अगर आतिफ का नाम लिखा है पासपोर्ट में तो एक बंदा होना चाहिए आतिफ नाम का. ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है. ठीक है ना. बंदा ही नहीं तो ये किसका पासपोर्ट है. ऐसे फंडा है. मतलब फॉरेन की में अगर नाम लिखा है तो किसी का और एक बंदे का होना चाहिए नाम, वो एक ही रो को करे आइडेंटिफाई और एक को जरूर करे. ये नहीं होना चाहिए कि किसी को नहीं कर रहे. सो दिस थिंग्स आर मेंटेन इन ओरेकल. ये ओरेकल के लेवल की चीज़ है. ओरेकल हमेशा मेक श्योर करता है कि रेफरेंशियल. ये कह रहा है कि सीबल ही अपने आप कर लेता. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बट आई नो दैट इट इज़ डन. इज मैनेज बाय सीबल एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी मॉडिफाइड बाय यूजर्स. हाँ, रो आई डी तो यूजर्स मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, ना आप करवा सको. कह रहा है ना मस्ट नॉट बी, कर भी नहीं सकते. Over 2000 tables in the database. ज़्यादा ही होगी. 3 major types: data interface and repository table. बोल रहे थे repository s underscore applet and s underscore ये सब bc वगैरह. रिमेंबर हम बात कर रहे थे ये भी किसी जगह स्टोर होते हैं. data is the main table. interface tables are those EAM tables. ठीक है ना. जो सारी आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स हैं ये ऐसे करके इंस्टॉल डॉट की एसेट स्क्रिप्ट से होती हैं. एक छोटा सा फैक्चुअल डिटेल. ये सारी जो डेटाबेस सर्वर इंस्टॉलेशन के समय इंस्टॉल डॉट की एसेट स्क्रिप्ट से होती हैं.
हो सकता है इक्विपमेंट में चेंज हो गया, हो सकता है 7.5 जैसी बात बड़ी आपको पता होना चाहिए, ऐसे वो जनरेट होती हैं आउट ऑफ द बॉक्स लेवल्स डेटा। स्टोर द यूज़र डेटा, डेटा टेबल्स। यूज़र डेटा कौन सा है कि यूज़र्स कौन कौन सा डेटा एंटर करते हैं। बिजनेस डेटा, एक तो जो अकाउंट वगैरह का जो डेटा है वो सब जो एंटर करें उनका अपना बिजनेस का डेटा है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम लोग बिजनेस डेटा बोल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, मान लो आई थिंक अकाउंट मर्ज वगैरह कर रहे हैं कुछ ऐसी, या चेकलिस्ट वगैरह एंटर कर रहे हैं, दे आर एंटरिंग न्यू चेकलिस्ट या एक्टिविटी प्लान एंटर कर रहे हैं नया, दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, सो दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड देयर। सीड डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा फॉर मोबाइल यूजर्स। आई थिंक ये ट्रांजैक्शन डेटा की बात ये हो रही है कि सिंक्रोनाइज कब किया उसने, कितने बजे किया उसने, किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें ट्रांजैक्शन ये सब भी वहीं पर स्टोर होती हैं। सीड डेटा, सीड डेटा मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, और पॉपुलेटेड एंड अपडेटेड बाय द यूजर्स थ्रू द सीबल बिजनेस एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है। बाय सर्वर प्रोसेसेस सच एज एंटरप्राइज इंटीग्रेशन मैनेजर फॉर बल्क इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा, ठीक है ना, असाइनमेंट मैनेजर फॉर एडमिन असाइनमेंट, तो ये दोनों भी हैं। एंटरप्राइज इंटीग्रेशन मैनेजर से वो बल्क इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग से भी डेटा अपलोड हो जाता है ना, अब मतलब उसमें हो जाता है लोड, बस इसमें थोड़ा सा इकट्ठे लगी हर बार। हैव नेम्स प्रीफिक्स विद एस अंडरस्कोर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये important। ठीक है, एस अंडरस्कोर और ई एक्स टी एस अंडरस्कोर अकॉर्डिंग टू ये सब ना, और डॉक्यूमेंट सीबल डेटा मॉडल, पूरा डेटा मॉडल रेफरेंस आपका यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको डेटा मॉडल रेफरेंस।